तो उसको कोर बोलते हैं। तो 12 जगह से हम लोग कोर प्रोस्टेट का ले लेते इसमें हैं। लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू that how difficult it is for you to tell a patient that they've got how do you handle their emotions when you telling them that they have okay And who've come triumphant. I have many patients जो एकदम 100% ठीक हो गए हैं सर्जरी के बाद, रेडिएशन के बाद, हार्मोन थेरेपी के बाद। एंड ऑल ऑफ दीज पेशेंट्स जब एक जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। आप जो पेशेंट्स जिनसे आप मिलते हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो स्टेज 1 में ही आ जाते हैं और कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसी स्टेज में है जिनको रिकवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन यूके, आई ट्रेन्ड इन रोबोटिक सर्जरीज फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इन द यूके। यूके में एनएचएस सिस्टम में है कि आपको पीएसए कराना है। समझना ये चाहता हूँ कि आपने प्रोस्टेट ग्लैंड भी निकाल दिया, जी। आपने लिम्फ नोड्स भी निकाल दिया, आपने उसके सराउंडिंग का फैट भी निकाल दिया। हाँ। तो ये सब चीज़ें जब आप निकाल देते हो तो ह्यूमन बॉडी में बाद में टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, डज इट रियली इम्पैक्ट? और प्रोस्टेट का एक इंपॉर्टेंट और फंक्शन होता है टू हेल्प यू कंट्रोल योर यूरिन। के बीच में तो प्रोस्टेट है नहीं, तो जो ब्लैडर में यूरिन आ रहा है तो सीधे बाहर निकल जाएगा। सो हाउ डू यू स्टॉप इट? There is no way through which we can check about prostate cancer using or a non-invasive. So PSA is a non-invasive, it's a blood test, but yes, if you call it it is an invasive blood test, is an invasive method. Yeah. Non-invasive, no. So you would need a PSA or an MRI. MRI is a non-invasive test. So if the PSA is high, you get an MRI done, and an MRI has a sensitivity of about 95 to 97%. So it can, with that accuracy, tell you whether you have the cancer or not. So MRI for the prostate is a non-invasive test. Yeah, no, I'm just talking about patients who have cancer. So biopsy is something which is बायोप्सी तो invasive. करना ही है, वो करना ही पड़ेगा। करना ही है, नॉट जस्ट टू प्रूव कि कैंसर है कि नहीं, किस ग्रेड का कैंसर है, बिकॉज ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दैट। Okay, let's understand prostate cancer में biopsy का क्या procedure रहता है? So there are two ways to do the biopsy of the prostate. The traditional, and what we are doing now also, is called a truss guided biopsy. Truss stands for TRUS, transrectal ultrasound guided biopsy. So we get a small probe of the ultrasound, which is like a finger, and we again put it in the rectum. A small probe going through the rectum. And because the prostate is just in front of the rectum, this probe visualizes the whole of the prostate. And in that ultrasound guidance, we are seeing on the screen, and through this probe, there is a channel in which we pass a needle. So उस नीडल से 12 जगह से हम लोग वो बायोप्सी कोड लेते हैं। But you give local anesthesia? So general, if a patient is very anxious or the pain threshold is very come, we put the patient to sleep. Or agar if the patient, normally we don't do it under general, we do it under local anesthesia. We infiltrate local anesthesia in the prostate, and the patients are absolutely fine. So it's a day care procedure. Patients सुबह आते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रोब से अगेन उसमें देख के प्रोस्टेट को चारों तरफ लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, एंड देन नीडल से 12 जगह से हम लोग बायोप्सी ले लेते हैं, एंड इन द आफ्टरनून द पेशेंट्स गो बैक होम. Yeah, so that's the first way of doing it. So that's a transrectal Truss. So transrectal ultrasound guided. That's the most common way to do the biopsies. Recently, we've got better machines which can fuse the MRI images, which I said, MR fusion biopsy, and that can also be done through the perineum. Perineum is the area between the scrotum and the anus. Can I request you to use some general terms so that people understand what we're talking about? Yes. So आपके अंडकोश, which are the testes, और नीचे जो रेक्टम होता है, जो एनस होती है, जो लैट्रिन का रास्ता होता है, उसके बीच के एरिया को पेरिनियम बोलते हैं. Okay. और प्रोस्टेट यहीं उसके पीछे बैठा है. तो इसमें ट्रांसपेरिनियल मतलब पेरिनियम के थ्रू हमने नीडल डाला, तो उसमें रेक्टम में जाने की जरूरत नहीं होती है. सो ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी. ये दो तरीके के बायोप्सी होते हैं. आइदर ये कितना मोटा नीडल होता है? सो नीडल बहुत मोटा नहीं होता है. जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि हम लोग को टुकड़ा लेना होता है, टिश्यू लेना होता है. सो इट्स लाइक अ गन. जो हम लोग फायर करते हैं तो गन प्रोस्टेट के अंदर जाती है और वहां से एक टुकड़ा लेके बाहर आ जाती है, तो उसको कोर बोलते हैं. तो 12 जगह से हम लोग कोर प्रोस्टेट का लेते हैं. इसमें लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया? जनरली ट्रांसपेरिनियल हम लोग जनरल में करते हैं, लोकल में भी कर सकते हैं. लोकल में भी कर सकते हैं. ओके, बट सो बोथ ऑप्शंस आर. जनरली आप बोल रहे हो आप जनरल एनेस्थीसिया. ट्रांसपेरिनियल. ट्रांसरेक्टली हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कितने परसेंट आप ट्रस्ट से करते हैं और कितने परसेंट? So because transperineal is recently started, so we are still doing most of the biopsies through the transrectal pathway.
and the results are very good. Infection rates अभी बहुत स्टडीज आई इसमें बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है. So we are sticking to the transrectal pathway because आराम से उसको लोकल एनेस्थीसिया में 2 घंटे में हम लोग करके पेशेंट को वापस भेज सकते हैं. राइट. और बायोप्सी करने के कितने दिनों के बाद आपको So पता it चलता generally है? takes about 3 to 5 days for the report to come, for the pathologist to give me the report. Because जो भी कोड्स आए, the pathologist has to process it, उसको फॉर्मूले में डाल के उसको फिर एग्जामिनेशन करना होता है माइक्रोस्कोप में, and then they make a report. So it takes about 3 to 5 days for us to get the final biopsy report. Right. So, I've done these podcasts with the oncologist, जी. and I want to understand from you that how difficult it is for you to tell a patient that they've got. How do Cancer. you handle their emotions when Hmm. you're telling them that they have prostate cancer? So very good question. It is quite difficult. The first time that the patient comes to me after a biopsy with a report in his hand, और कभी report नहीं होता है हमारे पास होता है, and they walk in, and the first time that I have to break the news to the patient कि आपको cancer है. So I will tell you exactly what I tell my patients. So I tell them that unfortunately this report shows, ये report दिखा रही है कि मुझे कि आपको prostate cancer है. बट फॉर्चुनेटली ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये और कोई कैंसर नहीं है, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर को हम लोग बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. कैंसर आया है, पहली बार आपने सुना है कैंसर आया है, झटका लगेगा. टेक योर टाइम, बट फेस इट, टेक द राइट ट्रीटमेंट, एंड यू कैन 100% विन ओवर दिस कैंसर. सो दिस इज एग्जैक्टली नॉट इन दीज वर्ड्स, थोड़ा डिफरेंट, बट यही मैं उनको हमेशा बोलता हूँ. इट इज डिफिकल्ट. कैंसर सुनते ही आदमी के होश उड़ जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है. इट्स नॉट ईजी. It's not easy. I would say 50% of the patients start crying वहाँ पे. But I have to calm them down and tell them कि अब जो है सो है हमारे सामने. We can't change it. The only thing that we can do is to stand up and face it. Right. And face क्या करना है, उसमें हमें next step पे जाना है, treatment लेना है. और अगर ये localized रहा तो 200% we can cure this cancer and you would not be bothered after the treatment with this cancer. So this is the reassurance that I give them कि जो है सो है, अब आगे देखना है, पूरे परिवार को साथ में लेके चलना. You have to be strong. To fight cancer, you have to be very strong mentally. You have to have a strong mental psyche. Face it, take the right treatment, take the right advice, and sooner or later, you will emerge triumphant. Right. बहुत बार पेशेंट्स लोग उस सेशन में नहीं समझ पाते हैं. सो आई गिव देम टाइम कि आप आराम से जाओ, एंड आई हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ काउंसलर्स एंड नर्सेज. फिर वो उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं, एंड व्हाट वी डू इज, अगर उसमें भी उनको परेशानी होती है, दे हैव नॉट कम टू टर्म्स की है, we make them talk to patients who have gone through this journey, Okay. and who have come triumphant. I have many patients जो एकदम 100% ठीक हो गए हैं सर्जरी के बाद, रेडिएशन के बाद, हार्मोन थेरेपी के बाद. एंड ऑल ऑफ दीज पेशेंट्स जब एक जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, वो लोग पेशेंट्स भी फर्स्ट डे बहुत डरे थे, एंड वंस दे हैव कवर्ड दैट जर्नी, कम आउट सक्सेसफुल, ट्रायम्फेंट, दे आर मोर देन ईगर टू हेल्प Others. Right. So I know कि ये if I give their number, they will answer the call and they will tell them क्या क्या हुआ था जर्नी में. And once जो newly diagnosed patient है उनसे बात करते हैं, उससे बहुत उनको confidence मिलता है, strength मिलता है. So yes, it's not easy. It's not easy for me. It's not easy for my team the first time that you say, because cancer एक को होता है, पूरे परिवार हिल जाता है. But then, as I tell them, अब जो हो गया सो हो गया, जो है सो है. You can't change it. Right. What you can do is face it, take the right treatment. We are with you. We'll give you the best treatment, and we'll come out triumphant. Okay, so let's understand what is the step two after identifying a person is having prostate Prostate cancer. cancer, right? तो हमें अब ये भी पता चल गया कि उसकी क्या स्टेज है, बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कितने, लेट्स से स्टेज 1 2 3 4, देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस. आप जो पेशेंट्स जिनसे आप मिलते हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो स्टेज 1 में ही आ जाते हैं, और कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसी स्टेज में जिनको रिकवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है? So as I said, in our practice, 70%. India, 70% would be either stage 3 or stage 4, locally advanced or metastatic. As against the Western population, यहाँ पे 70% would be in stage 1 and 2, because of the awareness and because of screening programs. For example, I was in UK. I trained in robotic surgeries
for a couple of years in the UK. UK में NHS सिस्टम में है कि आपको PSA कराना है. आप बियॉन्ड 50 आपके जो जनरल प्रैक्टिस GP वहाँ बोलते हैं उनका फोन आ जाएगा आपके पास कि आपका ड्यू डेट है, यू गेट योर PSA डन. इसलिए with that program we are able to pick up all the cancers जब symptoms नहीं है in stage 1 and stage 2. So 70% in UK I would say would be stage 1 and stage 2. इंडिया में उसका उल्टा है. Stage 3 and stage 4 would be 70%. Stage 1 and stage 2 would be 15-20%. But in the recent years, I've seen a change, especially in cities like Delhi, Mumbai, because of the increasing awareness. I am getting a lot of patients who've been picked up in the first stage just on PSA screening. And this is all because of the increased awareness. और तुरंत जाके PSA कराते हैं, कोई symptom नहीं है, but चूंकि एज हो गया तो PSA कराया, PSA बढ़ा हुआ आया, तो हमने बायोप्सी करी, बायोप्सी में पिकअप हो गया. So stage 1 and 2. So now it's increasing and slowly ये almost 50% पे आ रहा है in major cities दिल्ली में. Tier 2, Tier 3 cities still अभी वैसे ही होगा 70-80% stage 3, stage 4, but in Delhi I would say 50% पहुंच गया stage 1, stage 2. बट आप मुझे ये बताओ, आप दिल्ली और टीयर 2 सिटीज को कंपेयर कर रहे हैं हम जब, तो यू नो बिकॉज a lot of this is also because of the lifestyle that we're leading these days. But True. don't you think that in tier 2 cities people are still following the conventional lifestyle compared to tier 1 cities? Yes, yes. So उनमें ये चीज डेवलप होना, is it easy? So होगा तो उनमें भी, but a rough guess कि उनमें incidence कम होगा. दिल्ली में on metropolitan cities में I'm sure because of all the environmental factors and all of that, इंसिडेंस प्रोस्टेट कैंसर का ज्यादा होगा. टीयर 2 टीयर 3 में थोड़ा कम होगा. बट अगर अवेयरनेस नहीं, जो थोड़ा कम हो रहा है उनको भी तो नहीं पता है कि कैंसर हो सकता है, तो वो स्टेज 3 स्टेज 4 में आएंगे. स्टेज 3 स्टेज 4 में, करेक्ट. कम होगा, बट उसका ये मतलब नहीं कि स्टेज 1 स्टेज 2 में आ जाएंगे. कम होगा लेकिन वो भी स्टेज 3 स्टेज 4 में ही आएंगे. बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आई एम श्योर दिल्ली में इंसिडेंस, एंड नहीं, दैट्स अ फैक्ट. The census data, the prostate cancer registry has shown that पूरे इंडिया में दिल्ली में हाईएस्ट इंसिडेंस है प्रोस्टेट कैंसर का. Yes, that's a government figure. So Delhi has the highest load of prostate cancer patients in India, which आप जो बोल रहे थे एकदम सही है. Is it because of the screening that is happening too much in Delhi and it's not happening elsewhere? That is one of the reasons. That is one of the reasons. So last few years में prostate cancer का incidence बहुत बढ़ गया है. उसके 2-3 कारण हैं. एक तो कि कैंसर का इंसिडेंस ही बढ़ गया है, ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है, and that can be attributed to a lot of factors, environmental pollutions and all of that. So one reason वो है कि वो बढ़ गया है. दूसरा कि स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, अवेयरनेस ज्यादा है, स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा कैंसर पकड़ में आएगा, इसलिए उसका बहुत बूम हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल 1986 में PSA ब्लड टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले PSA नहीं था. तो 1986 से 1990 में बहुत ज्यादा बूम आ गया प्रोस्टेट कैंसर में, क्योंकि उसके पहले टेस्ट ही नहीं थे, और जैसे ही टेस्ट आया, टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर पकड़ में आने लगे. सो PSA टेस्ट आते ही बहुत बूम हो गया. तो वैसे ही यहाँ पे अवेयरनेस ज्यादा है, PSA ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंसिडेंस ज्यादा होगा, ज्यादा कैंसर पकड़ में आ रहे हैं. राइट, ठीक है. अब समझते हैं कि जैसे आप सर्जरी करते हैं, राइट जी. तो कौन सी स्टेज में सर्जरी सक्सेसफुल, आई मीन इन टर्म्स ऑफ स्टेज 1, 2, 3 या 4 में भी आप सर्जरी कर सकते हैं? So I'll start reverse. Stage 4 में stage 4 which is metastatic setting in which prostate में कैंसर है, prostate से बाहर कैंसर जा चुका है in the bones or in the lymph nodes, उसमें सर्जरी का रोल नहीं है. सर्जरी से मेरा मतलब है प्रोस्टेट को बाहर निकालना, उसका रोल नहीं है. उन पेशेंट्स में भी सर्जरी करते हैं, बट नॉट दिस सर्जरी, अगर उनका यूरिन रुक गया है. तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, लेजर सर्जरी जो होती है, जिसमें हम लोग नॉर्मल पैसेज से ही कैमरा डालते हैं, लेजर डालते हैं, प्रोस्टेट को शेव ऑफ कर देते हैं. दैट इज जस्ट टू गिव हिम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कि पेशाब होने लगे, तो वो सर्जरी करते हैं अगर पेशाब रुक गया है. बट द सर्जरी पर से फॉर द कैंसर, जिसमें हम लोग पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं, जिसको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं, जो मैं करता हूँ, उसका रोल नहीं है स्टेज 4 में. I'll come to stage 4 के treatment later, but surgery, let's talk about surgery. Stage 4 में रोल नहीं है. Stage 1 and 2 in which the prostate cancer is only localized, मतलब जो cancer cells हैं prostate के अंदर हैं. These are the ideal candidates for surgery because surgery से 100% cure हो सकते हैं and they can go back to a normal life and they would probably never be bothered by cancer again. So stage 1 and stage 2, the gold standard method is a robotic radical prostatectomy plus lymph node dissection if needed. I'll explain क्या होता है ये. So it's basically a robotic surgery. So let's break this. Robotic radical prostatectomy. The surgery is called radical prostatectomy. Radical क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अंदर जाते हैं और पूरा प्रोस्टेट बाहर निकालते हैं. प्रोस्टेट के चारों तरफ का जो फैट होता है वो भी साथ में निकालते हैं कि कोई कैंसर सेल भी ना रह जाए. प्रोस्टेट के पीछे ही
सेमिनल वेसिकल होती है, जो सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड, जो सीमेन की फ्लूइड होती है. सो वी रिमूव दैट ग्लैंड ऑल्सो, एंड वी रिमूव अ पार्ट ऑफ द वास डेफरेंस. वास डेफरेंस ट्यूब्स होती हैं जो टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म्स होते हैं, उसको यूरिथ्रा में लाती हैं. So we remove the prostate, we remove the seminal vesicles, and we remove part of the vas deferens with the fat surrounding the prostate. So that's why it's called a radical prostatectomy. It's a cancer surgery, so we remove the whole of it together. प्लस इन सम पेशेंट्स जिनका जो ग्रेडिंग मैंने बताया था, ग्रेडिंग अगर ज्यादा होता है बायोप्सी पे, अग्रेसिव कैंसर है, ग्लीसन 4, ग्लीसन 5, तो उनमें हम लोग लिम्फ नोड डिसेक्शन भी करते हैं. नाउ व्हाट आर दीज लिम्फ नोड्स? प्रोस्टेट हमारा पेल्विस में होता है, नीचे ब्लैडर के नीचे. उसके दोनों साइड्स में स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, विच आर स्मॉल पंप हाउसेस, विच पंप द फ्री फ्लूइड फ्रॉम द लेग्स टू द हार्ट. लेग्स में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक तो ब्लड होता है जो आर्टरीज, नसों में चलती है, आर्टरीज वेन्स में जाती है. उसके बाहर व्हाइट फ्लूइड होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं हम लोग, जो सेल्स के बीच में होता है. सो दीज ग्लैंड्स आर स्मॉल पंप हाउसेस विच पंप यहाँ का फ्लूइड टू द हार्ट. अगर प्रोस्टेट कैंसर को बाहर जाना था होता तो सबसे पहले वो लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करते हैं. Even though the PET scan has shown कि वहां पे नहीं है, but if it's an aggressive disease, with the prostatectomy, we remove both sides lymph nodes also, because PET scan has a sensitivity of 97% and it cannot pick up microscopic cells if they have gone to the lymph nodes. So अगर वो microscopic cells से गए हुए हैं तो उसको भी हम लोग साथ में ही निकाल देते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट के साइड में ही होते हैं. So the surgery is robotic radical prostatectomy plus bilateral lymph node dissection. I explained you the surgery. अब देखते हैं robotic में क्यों बोल रहा हूँ. मैं आपको यहाँ रोकता हूँ एक सेकंड के लिए और समझना ये चाहता हूँ कि आपने प्रोस्टेट ग्लैंड भी निकाल दिया, जी. आपने लिम्फ नोड्स भी निकाल दिया, आपने उसके सराउंडिंग का फैट भी निकाल दिया. हाँ. तो ये सब चीज़ें जब आप निकाल देते हो तो ह्यूमन बॉडी में बाद में टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, डज इट रियली इम्पैक्ट? कुछ चेंजेस आते हैं, बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद. अब क्या चेंजेस आते हैं? जैसे प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, ये सब निकाल दिया, वास डेफरेंस निकाल दिया, सो द पेशेंट्स वुड नॉट बी एबल टू इजैकुलेट. ऑर्गेजम होगा, दे विल हैव द फीलिंग इन द हेड विच इज कॉल्ड लिबिडो एंड ऑर्गेजम, बट इजैकुलेशन नहीं होगा. इट्स अ ड्राई इजैकुलेट, क्योंकि जो जो ग्लैंड्स है जो सीमेन फ्लूइड बनाती हैं वो निकाल दिया, जो ट्यूब जो स्पर्म लाती हैं टेस्टिस से वो निकाल दिया. सो ही वुड नॉट बी एबल टू इजैकुलेट. सो दैट इज वन थिंग which is generally okay for these age group of gentlemen, because prostate cancer generally 65 के beyond होता है. So these patients are okay with that. So that is one thing. Second, as I told you, the prostate sits beneath the bladder. And the urethra, जो पाइप जो यूरिन बाहर लाती है, वो प्रोस्टेट के बीचों बीच जाती है. और प्रोस्टेट का एक इंपॉर्टेंट और फंक्शन होता है टू हेल्प यू कंट्रोल योर यूरिन. अभी तो मैंने शुरुआत में फंक्शन बताया था कि सेमिनल फ्लूइड बनाती है एंड ऑल, बट एक और फंक्शन है, बिकॉज इसका ऐसा पोजीशन है, लोकेशन है, कि जब आपको या मुझे पेशाब लगता है तो हम अपने प्रोस्टेट को सिकुड़ लेते हैं और ये रास्ता बंद हो जाता है. ये रास्ता बंद हो जाता है तो हम लोग अपना यूरिन रोक पाते हैं. अब प्रोस्टेट निकाल दिया है, तब कैसे उसको रोकेंगे यूरिन? जब प्रोस्टेट हम लोग निकाल, जैसे ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट और नीचे का यूरिथ्रा है, जब प्रोस्टेट निकाल देते हैं तो ब्लैडर को फिर हम लोग यूरिथ्रा से जोड़ते हैं. ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरिथ्रा. प्रोस्टेट बीच से निकाल दिया तो बीच में खाली जगह है, अब यूरिन कैसे पास होगा? तो इन दोनों को वापस हम लोग जोड़ते हैं टाको से, स्टिचेस से. इट्स लाइक दो जॉइंट लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे सीमेंट लगाते हैं. बट इन दोनों बीच में तो प्रोस्टेट है नहीं, तो जो ब्लैडर में यूरिन आ रहा है तो सीधे बाहर निकल जाएगा. सो हाउ डू यू स्टॉप इट? So post the surgery, there is temporary urinary incontinence. Why am I saying temporary? Because most of the patients, 95% of patients world over data says, 3 महीने में पेशाब रुकना वापस सीख जाते हैं. They are continent again. So how do they do without, it? Without the prostate. Yes. How do they do it? They do it with the help of their pelvic floor muscles. नीचे मसल्स होती हैं जिनको हम लोग एक्सरसाइजेस के थ्रू पेशेंट्स को टीच करते हैं टू यूज दोज मसल्स टू स्टॉप द यूरिनेशन. दीज एक्सरसाइजेस आर कॉल्ड कीगल एक्सरसाइजेस और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस. ये हम लोग सर्जरी के पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट द मसल्स आर गुड इन टोन एंड दे कैन स्क्वीज एंड स्टॉप द यूरिन. एंड विद दोज मसल्स पेशेंट्स, 95% ऑफ पेशेंट्स कैन स्टॉप द यूरिन बाय 3 months ऑफ टाइम. बट येस, शुरुआत में दे विल लीक सम यूरिन. ये वर्ल्ड ओवर कहीं भी सर्जरी होगी, बिकॉज प्रोस्टेट नहीं, एंड द मसल्स टेक सम टाइम टू टेक अप द जॉब ऑफ द प्रोस्टेट. सो इनिशियली दे विल लीक, बट इवेंचुअली दे शुड बी एबल टू होल्ड बैक द यूरिन. सो दिस इज अनदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो उनको करना पड़ता है. बियॉन्ड दैट देर इज, बिकॉज इट्स, मैं अभी रोबोटिक के बारे में भी आपसे बात करूंगा, बिकॉज इट्स थ्रू अ रोबोटिक अप्रोच, इट्स अ वेरी मिनिमली इन्वेसिव अप्रोच, इट डजंट हैम्पर योर लाइफ आफ्टर सर्जरी. लेट्स मूव ऑन. समझते हैं जो आप एक दूसरा मेथड बता रहे थे, तो वो क्या है?
दूसरा जैसे पार्ट है। मैंने आपको रोक लिया ना कि जब हम इतने सारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, हाँ, आप कुछ और समझाना चाह रहे थे इससे सो पहले। रोबोटिक सर्जरी समझाना चाह रोबोटिक रहा था, यस। सर्जरी। सो ये तो पार्ट हुई कि सर्जरी में क्या किया हमने। हम्म। सो द होल सर्जरी इज कॉल्ड रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। हम लोग अभी बात की रेडिकल प्रोस्टेक्टमी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नाउ कमिंग टू रोबोटिक। So can we say the first one that you mentioned is a conventional surgery? सो दैट्स एन ओपन सर्जरी That's an open विच surgery. अब पहले वोग में था बिफोर द रोबोट सिस्टम का केम इन। अभी भी कुछ सर्जन्स करते हैं, बट नाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द रोबोटिक अप्रोच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच Okay. for doing this surgery. Hmm. So if you need to get this surgery done, robotic is the best Best. approach to get this surgery done. And there have been several studies and several Hmm. papers which have proven the superiority of robotic approach over the conventional open approach or the laparoscopic approach. So there are three approaches to surgery: the open approach to radical Laparoscopic. prostatectomy, then laparoscopic surgery again, which is through keyholes but through laparoscopic instruments, Right. and the third one is the Is robotic robotics. approach, which we are doing and which is the gold standard. So, what is this robotic surgery? There's a lot of myth that the robot does the surgery. So a lot of people feel that the surgeon is sitting having a coffee in this on the sides, and the And the robot robot comes is. in and does the surgery and goes away. So it's not like that. So it's a misnomer. It's not a robot. Yeah. It's just a machine. It's a machine which the surgeon controls. So as I said, this is a minimally invasive surgery. Minimally invasive क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ 5 छेद बनाते हैं, छोटे छोटे 8 मिलीमीटर होल्स बनाते हैं। 4 छेद से रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं और एक छेद से हमारा सूचर्स जाता है अंदर, जो हम लोग टाकों के लिए यूज करते हैं। जो 4 छेद होते हैं उसमें बीच में एक कैमरा जाता है अंदर, और बाकी 3 में रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं अंदर। और ये इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जन सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोबोट ऑन अ कंसोल कंट्रोल्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक्स। जो आप तीन बोल रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं तीन? और टिपिकली राइट साइड में एक सिजर होता है काटने के लिए, लेफ्ट साइड में उसको बाइपोलर बोलते हैं हम लोग, कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए उसको जला सकते हैं, कॉटरी होती है। सो एक सिजर, एक ब्लीडिंग रोकने के लिए, और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो पकड़ने के लिए होता है, ट्रैक्शन के लिए होता है कि कुछ पकड़ के इधर कर दिया, कुछ पकड़ के उधर कर दिया। सो टिपिकली वी यूज दीज 3 रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स प्लस एक कैमरा। सो ऑल दिस इज माउंटेड ऑन अ रोबोट, अ मशीन, और वो मशीन अंदर जाती है और सर्जन इज सिटिंग थोड़े से दूर पे ऑन अ कंसोल। सो रोबोट के 3 पार्ट होते हैं, एक सर्जन कंसोल, एक मेन रोबोट जो बॉडी के अंदर गया विद द इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द थर्ड इज अ विजन कार्ड, जिसमें मेरा जो असिस्टेंट है बेड साइड वो बैठ के देख रहा है अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज मैं तो विजन कार्ड में देख रहा हूं, एंड द विजन कार्ड गिव्स मी अ 3D विजन। उसमें 2 लेंसेज होते हैं ऑन द कैमरा। द विजन इज अ 3 to 5 times magnified vision. It's a binocular vision and it's a 3D vision. सो जब मैं ऑपरेट करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पेट के अंदर बैठा हुआ हूं ऑन टॉप ऑफ द ब्लैडर, एंड आई एम सीइंग द प्रोस्टेट विद माय आईज देयर। सो दैट्स द विजन। The next is the articulation of the instruments. These instruments are very fine instruments, and these instruments can rotate 270 degrees much more than the human hand and the arms. जैसे मैं joystick घुमाऊंगा, वो instrument इतना पतला instrument, finer than your fingers, and it moves. So that gives the precision in this surgery. With robotic surgery, it's a minimally invasive thing, no cut. Because of the precision, the average blood loss is in my surgeries is 20 to 50 ml. That's it. यही open surgery होती है तो average blood loss studies have shown is 500 ml average. It can go up also, but in an average robotic surgery, it's not more than 50 ml. Sometimes it's 10-20 ml only. So no blood loss, no need of any blood transfusion, because कोई cut नहीं लगा है तो कोई ज्यादा pain नहीं होता है. Because of the vision and the precision, the surgery is very precise. You would remember मैंने शुरुआत में बोला था, the nerves for the erection travel very close to the prostate. Correct. ओपन सर्जरी में वो नर्व्स देखना बहुत मुश्किल होता है, सो बचाना तो बहुत ही और मुश्किल होता है। जब दिख ही नहीं रहा है तो कैसे बचाएंगे हम लोग? इन दिस, बिकॉज ऑफ द विजन एंड बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, वी कैन सेव ऑल द नर्व्स, and these nerves are responsible for the erection of the penis. So the functional outcomes for these patients are very good. These patients, even after the surgery, removal of the prostate, still have very good erections if we have saved the nerves. वहां पे बाकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फिंक्टर होता है जो यूरिन कंट्रोल में हेल्प करता है, विद बिकॉज ऑफ द विजन एंड द प्रिसिशन हम लोग स्फिंक्टर को बचा सकते हैं, एंड दैट आल्सो हेल्प्स इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. Patients typically stay in the hospital for 1 to 2 days. Same day of the surgery, it's a major surgery, but same day of the surgery in the evening वो खाना पीना स्टार्ट कर लेते हैं, start moving about, and depending on their pain threshold, next day या उसके अगले दिन they are discharged. So that is the beauty of robotic surgery and a minimally invasive approach. A very major surgery and a surgery for cancer, making you cancer free
और 2 दिन में आप सर्जरी करा के वापस घर आ सकते हैं। अब ये समझते हैं डॉक्टर तुषार कि किसी को डायग्नोस हमने कर दिया कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो do they take suggestions from you that what type of surgery they should be getting done, और आप सिर्फ वो इतना इमोशनली वीक हो चुके होते हैं कि whatever the doctors are prescribing they're okay with it? नहीं नहीं, ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर इट्स माय ड्यूटी टू गिव देम ऑल द ऑप्शंस। हम्म, जैसे थोड़ा सा लोकलाइज्ड डिजीज होती है तो उसमें सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी सारे ऑप्शंस होते हैं। हम्म, So as a doctor, it's my duty to present all the options in front of the patient, tell them the pros and cons of each treatment modality, और वो patient decide करेगा कि उसको सर्जरी करानी है, कि हार्मोन्स थेरेपी लेनी है, रेडिएशन लेना है। नहीं, मैं सिर्फ सर्जरी की बात कर रहा Surgery. हूँ। So for surgery, I do only robotic surgery. I don't do open or laparoscopic because it has been proven beyond doubt that robotic is the The method of best. best choice to do the surgery. So if अगर कोई मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बोल देता हूँ मैं सिर्फ robotic surgery ही करता हूँ. I don't do open or laparoscopic surgery. And I would suggest कि उनको open और laparoscopic कराना भी नहीं चाहिए because the difference is ज़मीन आसमान का between these two. Let's understand, if you can tell us that what is going to be the difference in terms of the cost if a person Okay. is getting conventional, which is जी. open surgery, versus laparoscopic and versus robotic. So true, robotic surgery is a little costly because obviously जो machine है and the जो instruments होते हैं सारे disposable instruments होते हैं, all of these are imported from US, कुछ भी इंडिया में नहीं बनता है और हर सर्जरी में disposable instruments, disposable drapes use हो रहे हैं। तो robotic surgery is a little more expensive to the tune of rough figures. I would suggest in Delhi the difference between open and laparoscopic on one side and robotic on one side would be roughly about 1 to 1.5 lakh rupees, the difference in the surgical fees, but वो थोड़ा difference makeup हो जाता है because if you do get an open surgery done, you stay in the hospital 5 to 7 days at least. With robotic surgery, you're going home in 1 to 2 days. 1 to 2 days. So hospital stay is shortened, your recovery is faster, you go back to work faster. So वो ज़्यादा difference रह नहीं जाता है in the money wise also if you look at the larger picture. अब बस देखोगे कि कितना आपको hospital में खर्चा हो रहा है, वो भी कम हो जाता है because the hospital stay has gone up in open surgery and robotic surgery में 2 दिन है, यहाँ 5 दिन है. So जो 1.5 लाख का डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं Cover up मैच हो हो जाता जाता है। है, कवर हो जाता है. So there's no reason for me, there's not even a single point for me to believe कि robotic छोड़ के मुझे कुछ और करना चाहिए for the patients. करेक्ट। अच्छा, चलिए अब समझते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो हम सर्जरी परफॉर्म कर Right. सकते हैं, बट बिफोर वी गो टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 3 एंड स्टेज 4, लेट्स अंडरस्टैंड दैट in terms of the success ratio Right. in stage 1 and 2, कितने परसेंट केसेस सक्सेस हो जाते हैं? So it depends सक्सेस हम किसको डिफाइन करते हैं. अगर हम लोग कैंसर कंट्रोल को सक्सेस डिफाइन करेंगे, कैंसर फ्री कर दिया मैंने इन पेशेंट्स को 100%. 100%. 100%. So obviously these patients are on follow up. हर 3 महीने पे for the first year they have to get their PSA tested. Second year में 6-6 महीने पे, third year से साल में एक बार. Because after this surgery जितना भी PSA था उनका 10, 20, 30, it should come down to undetectable levels. Okay. So after the surgery, every 3 months we get a PSA test done because any cancer has the potential to come back ever. वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 2 हो, कैंसर है तो कभी भी वापस आ सकता है. आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है अगर वो स्टेज 1 स्टेज 2 है तो. बट अगर हमने वो पूरा निकाल दिया सब Right. कुछ सारे बॉडी ऑर्गन्स जिसमें Right. हमने डिटेक्ट किया कि कैंसर है, तो फिर वो वापस कैसे रिलैप्स एक कैसे होगा? माइक्रोस्कोपिक सेल कहीं रह गया हो बॉडी में, दैट हैज द पोटेंशियल टू अगेन ग्रो, और अगर वो ग्रो करेगा तो पीएसए प्रोड्यूस करेगा, इसलिए मुझे टेस्ट करना है. स्टेज 1 का पेशेंट अगर उसमें 0% चांस रहता है कभी भी वापस आने का, तो आई वुड हैव नेवर कॉल्ड देम बैक फॉर अ फॉलो अप. आई वुड हैव सेड यू आर ट्रीटेड, आप आराम से जाइए, अगली जिंदगी जिए. बट नहीं, जो भी पेशेंट हो, मिनिमल से मिनिमल डिजीज हो, तो उसको भी 3-3 महीने पे पीएसए कराना है, फॉलो अप में रहना है, because any cancer has the potential to come back. Okay. Stage 1, stage 2, I would say out of 100 patients, एक या दो पेशेंट में कभी पीएसए बढ़ेगा 4 साल 5 साल बाद, तो उनका रेकरेंस होगा, तो उसमें जब और पीएसए से हमें तुरंत पकड़ में आ जाएगा, देन वी गिव देम द ट्रीटमेंट और फिर ठीक हो जाता है वो. उस स्टेज पे फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? हार्मोन थेरेपी एंड डिपेंडिंग की डिजीज कहाँ पे है हम लोग रेडिएशन भी दे सकते हैं. बट हार्मोन थेरेपी इज द बैकबोन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर फॉर अ रेकरेंट डिजीज और अ मेटास्टेटिक डिजीज. हार्मोन थेरेपी क्या होता है? बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, दैट इज फूड फॉर प्रोस्टेट कैंसर सेल्स. हार्मोन थेरेपी आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और सर्जिकल कैस्ट्रेशन, या तो हम सर्जरी करके, जिसमें सर्जरी में दोनों हम टेस्टिस निकाल दें कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही खत्म कर दें, या इंजेक्शन से हम टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में कम कर दें. दैट कंट्रोल्स द प्रोस्टेट कैंसर इन द 4th स्टेज जो हम लोग डिस्कस अभी करेंगे.
So that is hormone therapy for prostate, metastatic prostate cancer. Now, since we're discussing this, let me understand from you. आज की generation में, we see it's good that the youngsters are going to gym, exercise वगैरह कर रहे हैं, but at the same time, they get influenced and they take these hormones, A lot which of supplements which increases have testosterone. the Yes, testosterone. yes. So, are they likely to develop prostate cancer in that case? So it's not been proven beyond doubt कि जो young males bodybuilders हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेने से रिस्क बढ़ता है. अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और तब टेस्टोस्टेरोन ले तो इट विल फ्लेयर अप. बट टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं और अभी कैंसर नहीं है, सो इट्स नॉट बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि ये कैंसर कॉज करेगा. ओके. बट अगर किसी को कैंसर बन गया है एक सेल और उसको टेस्टोस्टेरोन अगर ले रहे हैं या बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ऑब्वियसली इट विल फ्लेयर अप. सो फॉर क्वेश्चन आंसर टू योर क्वेश्चन कि बॉडी बिल्डर में अभी रिस्क ज्यादा नहीं है इवन इफ दे टेक टेस्टोस्टेरोन. उसका और अलग साइड इफेक्ट्स होगा of the testosterone that they take, though that's a different story, but it won't increase the chance of having prostate cancer. No, even at the older age as well for them. So we have not had studies because शायद हमें लोग नहीं मिलेंगे in the older age who take supplemental testosterone, but it's not been proven. Okay, sure. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Let's understand stage 3 and stage 4. Yes. So that was stage 1 and 2, and as I said, robotic surgery, some lifestyle changes which we discussed, and beyond that, they should be 100% cancer cured, but cancer free. But obviously, they have to be under follow-up, stage 1 and 2. Stage 3 is a locally advanced stage in which the prostate cancer has spread out of the prostate, involving the neurovascular bundle or the bladder or the rectum, not to the bone. So let's stick to only the locally advanced disease, in which the disease is in the prostate but has gone outside the prostate, but not to distant sites. Okay. बोन्स में नहीं गया है, कहीं और ऑर्गन में नहीं गया है, प्रोस्टेट में ही है, बट प्रोस्टेट के कैप्सूल से बाहर आ गया है, बगल बगल के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लाइक सेमिनल वेसिकल में चला गया है जो बगल में है उसके. सो दिस इज a locally advanced prostate cancer. So in this we have two treatment options, hormone therapy plus radiotherapy. इसमें हम लोग 2 साल के लिए हार्मोन थेरेपी देते हैं और बाहर से रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन टू किल द कैंसर सेल्स. रेडिएशन बीम होता है, एक्सरे सेल्स, एक्सरे बीम्स आते हैं एंड इज फोकस्ड ऑन द प्रोस्टेट टू किल ऑल द कैंसर सेल्स. सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, hormone therapy plus radiation therapy. I'll tell you what hormone therapy is. And the other treatment in these patients also is surgery. सर्जरी करके हम लोग प्रोस्टेट को निकाल दें, अगेन रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी. बट बिकॉज दिस इज अ लोकली एडवांस्ड डिजीज, देयर आर चांसेस दैट देयर विल बी recurrence in the future. There's 30 to 40% chance that you will need hormone therapy in the near future once the cancer cells come back. So सर्जरी इसमें भी कर सकता है. अगर किसी को बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं, यूरिन रुका हुआ है और यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो वी गो अहेड, रिमूव द प्रोस्टेट एंड देन फॉलो ऑन द PSA. बट इसमें बहुत हाई चांसेस है कि PSA बढ़ेगा या बेसलाइन टच नहीं करेगा, तो इसमें फिर हम लोग को हार्मोन्स एंड रेडिएशन भी दे सकते हैं. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टेज 3 पर भी बोथ आप ऑप्शंस आर सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोस्टेट ग्लैंड भी निकाल देंगे, लिम्फ नोड्स भी निकाल देंगे, तो उससे कैंसर के सेल्स लगभग बाहर आ जाते हैं. यस यस. और उसके बाद आप 3 महीने बाद रीवैल्यूएट करेंगे. इसमें हायर चांसेस है फॉर द PSA टू गो अप, सो दोस पेशेंट्स विल नीड हार्मोन थेरेपी वंस द PSA गोस अप.